हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम 41st आर्टिकल स्टार्ट करेंगे। 41st क्वेश्चन एक्चुअली शुरू करेंगे हम लोग। 40 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ था। फंडामेंटल राइट हम लोग देख रहे थे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स द फ्रीडम ऑफ प्रेस। ठीक है, फ्रीडम ऑफ प्रेस आर्टिकल 19 में है। आर्टिकल 19 स्पेसिफिकली देखें तो 19(1)(a) में है। ठीक है ना। अंडर विच आर्टिकल शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स हैव बीन ग्रांटेड द फंडामेंटल सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड कल्चरल राइट्स। तो ये आर्टिकल 17 हो जाएगा, क्योंकि देखिए आर्टिकल 17 जो है फॉरबिट करता है अनटचेबिलिटी। तो उसी में जो है ये आपका SC एंड STs के लिए जो है कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, जैसे सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड कल्चरल राइट्स। Article 17 of the Constitution provide the abolition of the untouchability and its practice in any form is forbidden. ठीक है, it is a statement of principle with which the objective to remove the humiliation and the multifaceted harassment meted to Dalits and to ensure their fundamental socio-economic and political and cultural rights. Next question is, in Indian Constitution or Indian Constitution does not give the right to freedom of press, but it is included in. So it is included in Article 19(1)(a). ठीक है, Article 19(1)(a). Indian Constitution does not give directly right to freedom in the press, but it is included in Article 19(1)(a), which provide right to press of freedom of speech and expression. Next is, in which article the fundamental rights of freedom of speech and expression is provided in the Constitution of India. So it is Article 19 and specifically Article 19(1)(a). Next question is, freedom of speech freedom of न्यूज़पेपर्स इन इंडिया। तो वही सेम है हमारा, फ्रीडम ऑफ न्यूज़पेपर भी आर्टिकल 19(1)(a) ही होगा। देखिए, फ्रीडम ऑफ न्यूज़पेपर और प्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन बट इंक्लूडेड इन आर्टिकल 19(1)(a) एज द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। In the case of Sakal Press Papers versus Union of India 1962, the Supreme Court stated that the freedom of press is included in freedom of speech and the expression, Article 19(1)(a). Next question is, as a part of right to freedom, which one of the following does not form the part of freedom to assemble peacefully and without arms? ठीक है, तो कौन सा कह रहे हैं कि कौन से पार्ट हमारे जो है as a part of the right to freedom, which one of the following does not part of the freedom of assemble peacefully without arms? ठीक है, तो it is घेराव ऑफिशियल्स नॉट परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा घेराव ऑफिशियल्स नॉट परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज। तो इसमें कह रहे हैं कि डज नॉट फॉर्म द, कौन सा जो है फॉर्म नहीं करता फ्रीडम ऑफ असेंबल पीसफुली विद एंड विदाउट आर्म्स। ठीक है, तो ये जो घेराव करना ये जो है कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता, बाकी है सारा। देखिए, पीसफुल असेंबली भी होगा, पीपल हु असेंबल शुड नॉट बियर आर्म्स, ये भी है। स्टेट कैन मेक लॉज इम्पोजिंग द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द एक्सरसाइज ऑफ राइट्स। तो all are correct except A. Article 19(1)(b) provides the freedom of assemble peacefully and without arms. Under the Article 19(1)(3), the state can impose reasonable restriction in the interest of the public order. Next question is 47. By which one of the following ground a citizen's freedom of expression may not be subjected to restriction? ठीक है, तो किस ग्राउंड पे नहीं होगा? अब देखिए, सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, मे नॉट बी सब्जेक्टेड टू रिस्ट्रिक्शन। फिर से समझ लीजिए, बाई विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स अ सिटीजन्स फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मे नॉट बी सब्जेक्टेड टू रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, तो सोवरेनिटी ऑफ इंडिया बिल्कुल सही, पब्लिक ऑर्डर, कॉन्सेप्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड अनबिकमिंग क्रिटिसिज्म। ठीक है, तो ये है ऑल ऑफ एबव। देखते कैसे। देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मे बी रिस्ट्रिक्टेड ऑन द ग्राउंड ऑफ सोवरेनिटी। ठीक है, मे बी restricted on the ground of sovereignty, integrity of India, security of state, friendly relation with foreign countries, foreign state or countries, public order, decency or morality or contempt of court, defamation or incitement to an offence and enumerated in Article 19(b). ठीक है, तो हमारे Article 19(b) में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which article of the Constitution of India रिपब्लिक स्टेट्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो आपको बिल्कुल पता ही आर्टिकल 21 है, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करता है। आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 19 गारंटीज द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। क्या करते हैं आर्टिकल 19? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आर्टिकल 22 is about the protection against the arrest and detention in certain cases, and Article 20 is about the protection in respect of conviction of offences. So Article 20 is about the protection in respect of conviction of offences. Article 22 is about the protection against the arrest and detention in certain cases, and Article 19 guarantees the freedom of speech
and expression. Article 21 of the Constitution related to the protection of life and personal liberty. 49th question, in the context of polity, which one of the following would you accept as the most appropriate definition of liberty? देखिए लिबर्टी का सबसे अप्रोप्रिएट डेफिनेशन क्या हो सकता है? आंसर हमारा है अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुली. ठीक है, अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुली. लेकिन अगर यहाँ पे होता कि जो है देखिए फ्रीडम भी एक तरीके की लिबर्टी होती है. ठीक है ना, फ्रीडम नहीं होगा तो अपॉर्चुनिटी नहीं होगी अपने आप को डेवलप करने की. तो अगर फ्रीडम ऐसा होता तो यहाँ पे फ्रीडम भी आंसर हो सकता था. देखिए ऑप्शन हमारे उसी के अकॉर्डिंग बात करेंगे. तो हमारा पहला है प्रोटेक्शन अगेंस्ट द टायरनी ऑफ पॉलिटिकल रूल्स. सही सारे हैं लेकिन हमारा एग्जैक्ट जो है ये यही होगा. ठीक है ना, मोस्ट अप्रोप्रिएट एब्सेंस ऑफ रेजिस्टेंट. ठीक है, अपॉर्चुनिटी टू डू वट एवर वन लाइक्स. तो ये तो है ही नहीं, कैसे जो भी कुछ कर सकता है कुछ गलत करना चाह रहा हो तो ऐसे कैसे होगा. ठीक है, रिस्ट्रेन कुछ ना कुछ तो स्टेट का भी होता है. ठीक है ना, तो ये चीज़ हमारा हो गया. मोस्ट अप्रोप्रिएट हमारा डी है. देखिए ऑप्शन 1 एंड बी, सॉरी A and B gives a negative perception of liberty. C is related to the anarchy and lawlessness. Option D provides a positive conception of liberty as provides in our constitution. The term liberty means the absence of restraints on the activities of individuals and at the same time providing opportunities for the development of individuals' personality. Liberty that our constitution provides for the provision of reservation protection of minority rights, prohibition of discrimination on the ground of religion, race, caste, sex, place of birth, etc. Provide for the creation and enabling atmosphere where an individual can develop themselves fully. ठीक है, तो ये हो गया हमारा. आर्टिकल 50 क्या है, सॉरी क्वेश्चन 50 हमारा है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स पर्सन्स राइट टू ट्रेवल अब्रॉड. ठीक है, तो ये जो है हमारा करता है ये आर्टिकल 21 है. राइट टू लाइफ में राइट टू ट्रेवल अब्रॉड भी आ जाता है. तो देखिए in case of the Menka Gandhi versus Union of India, Menka Gandhi versus Union of India 1798, the Supreme Court held that the right to travel abroad is a fundamental right and is secured by Article 21. ठीक है, और अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज अवेलेबल अंडर द आर्टिकल 19(1)(d) रीड विद द आर्टिकल 21. ठीक है, तो कौन सा राइट अवेलेबल है? अगर आर्टिकल 1D के साथ हम 21 को पढ़ लेते हैं तो कौन सा राइट है? देखिए राइट टू ट्रेवल अब्रॉड है, राइट टू शेल्टर है, राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू इन्फॉर्मेशन है. तो देखिए राइट टू ट्रेवल अब्रॉड. अब याद रखिएगा आर्टिकल 19(1)(d) आर्टिकल 19(1)(d. ठीक है, 1D को हम 21 के साथ पढ़ेंगे तो हमें मिलेगा आर्टिकल जो आपका है राइट टू ट्रेवल अब्रॉड. देखिए आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21 आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर. इन आर्टिकल 21 द periphery of the personal liberty is very wide. ठीक है, there are many types of rights in it. Some of these have been special protection by including them in article 19. Article 19(1)(d) deals with to move freely throughout the territory of India, while article 21 deals with the protection of life and personal liberty. If article 19(1)(d) is read together with article 21, then the right to travel abroad is obtained. ठीक है, तो article 19(1)(d) deals with the to move freely throughout the territory of India. And article 21 क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. दोनों को साथ पढ़ेंगे तो हमें जो है राइट टू ट्रेवल अब्रॉड इज ऑब्टेन्ड. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल विद इन द प्रीव्यू ऑफ द आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो कौन से में प्रीव्यू 21 में नहीं है? ठीक है, तो मेडिकल एड टू इंजर बाई अ डॉक्टर. ठीक है, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, पोल्यूशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ वाटर. तो ये देखिए सारा सही है हमारा. ठीक है, ये सारा ही सही है क्योंकि आपने अभी देखा होगा जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी उसी में आ जाएगा. ठीक है ना, एयर क्वालिटी ये सब उसी में आ जाएगा, लेकिन कैपिटल पनिशमेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन दैट. ठीक है, आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. ठीक है, उस लॉ के अलावा और कहीं से उसको जो है वो अपनी लाइफ से और उसकी पर्सनल लिबर्टी को छीना नहीं जा सकता. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैड वाइडेंड द स्कोप एंड ऑर्बिट ऑफ द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एट वेरियस ओकेजन्स. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन हियर, ऑप्शन डी इज करेक्ट एज फ्रॉम डिसीजन ऑफ द Bachan Singh versus State of Punjab, it is now clear that the provision capital punishment
as given in the section 302 of IPC is not violative of the article 21 of the constitution because it is given only for the serious crimes. ठीक है, so capital punishment does not come under the provisions of article 21 of the constitution. All the other rights given in the options come under the right to life and personal liberty as it has been declared by the Supreme Court through following decisions. अब decisions देख लेते हैं. हमारा पहला हमारा है medical aid to injured by the doctor. ये आपका है परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1989. ठीक है, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, पोल्यूशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ एयर सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1991. ये जो है ये सारे हैं जिसमें हम इंक्लूड करते हैं आर्टिकल 21 के अंदर ये सारी चीजें तीनों जो हमारे AB से थे. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वेस्टेड बाय द राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन तो है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज एंड प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन द फैक्ट्रीज एंड द माइंस. तो देखिए हमारा ये है C 1 and 4. ठीक है, 1 मतलब हमारा हो गया प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग and forced labor and prohibition of employment of children in the factories and mines. और क्वेश्चन हमारा क्या था कि right against exploitation in the constitution of India कौन से में है. तो abolition of untouchability ये जो है exploitation के अगेंस्ट नहीं है, protection of interest of minorities ये भी नहीं. देख लेते हैं एक बार. देखिए right against exploitation given in article 32 and 23 and 24 provides two provisions that is abolition of trafficking in human being and begar forced labor जिसको बोलते हैं and abolition of employment of children below the age of 14 years in the hazardous jobs like the factories and mines. तो हमारा जो right against exploitation है अगर आप पढ़ेंगे तो दो आर्टिकल है, आर्टिकल 22 and 23. ठीक है, दोनों आर्टिकल में हमारा दिया हुआ है. एक तो है आपका abolition of trafficking in human being and begar और दूसरा हमारा एबोलिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 14 ईयर्स इन एनी हैजार्डस जॉब लाइक फैक्ट्रीज एंड माइंस. ये तो ये 24 में है, तो 23-24 ही हमारा होगा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. नेक्स्ट है द प्रोविजन ऑफ द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. ठीक है, क्या है प्रोविजन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इंक्लूड्स फ्रीडम ऑफ प्रोपागेशन ऑफ रिलीजन. ठीक है, ठीक है, प्रोपागेट कर सकते हैं. राइट टू वियर एंड कैरी कृपांस ये भी सही है. स्टेट्स राइट टू मेक लॉज फॉर सोशल रिफॉर्म्स. ठीक है, राइट टू कन्वर्जन ऑफ रिलीजन ये कन्वर्जन नहीं है. ठीक है, तो ये हमारा है 1, 2 and 3. ठीक है, कन्वर्जन इज नॉट पॉसिबल अंडर दिस राइट. तो देखिए आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फ्रीडम ऑफ कंसियंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपागेशन ऑफ रिलीजन. 25 में क्या है आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द फ्रीडम ऑफ कंसियंस. ठीक है ना, उनकी जो अंतरात्मा जो कहती है फ्रीडम एंड प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपागेशन ऑफ रिलीजन एंड ऑल्सो राइट टू स्टेट टू मेक लॉज फॉर द सोशल रिफॉर्म्स. ठीक है, सोशल रिफॉर्म करने के लिए लॉज वो बना सकते हैं, तो ये स्टेट का राइट होता है. ठीक है, इसको थोड़ा सा हम Carrying and bearing the kripans by Sikhs is deemed as the right to freedom of religion by virtue of the explanation 1 of the article 25. The right to conversion of religion by the religious bodies and institution is not provided under this article. Next question है हमारा ये है आपका according to article 25 of the constitution right to freedom of religion is not subjected. तो public order है, health है, आपका मॉडलिटी भी है, ह्यूमनिज्म में सब्जेक्टेड नहीं है. ठीक है, ह्यूमनिज्म नहीं दिया हुआ है वहां पे. तो देखिए आर्टिकल 25 क्या है. Article 25, according to Article 25 of the Indian Constitution, all the persons are equally entitled to freedom of conscience, right to freely profess, practice and propagation of religion. But these rights have certain limitation imposed on the ground of public order, morality and health. तो तीन चीजें यहाँ पे है, public order, morality and health. Humanism is not a limitation imposed under Article 25. Next question is, what are the restrictions in the freedom to manage religious affairs in Article 26 of the Constitution? What are the restrictions? ठीक है, कौन क्या restriction है? What are the restrictions in the freedom to manage religious affairs in Article 26? ठीक है, तो 25 में 26 का भी बात कर रहे हैं. देखिए यहाँ पे ऑप्शन है पब्लिक ऑर्डर, नेशनल सिक्योरिटी, एजुकेशन, मॉरलिटी, हेल्थ एंड सेक्युलरिज्म. तो क्या है फ्रीडम टू मैनेज द रिलीजियस अफेयर्स. ठीक है, तो देखिए इसमें ये हमारा है 1, 4 and 5. पब्लिक ऑर्डर है,
फिर है मॉरलिटी एंड फिर 5 है हेल्थ। पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी एंड हेल्थ, एजुकेशन, नेशनल सिक्योरिटी एंड सेक्युलरिज्म नहीं दिया हुआ है। आर्टिकल 26 एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी ऑफ इट्स सेक्शन शैल हैव राइट टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस, मैनेज हिज इट्स ओन अफेयर्स इन द मैटर्स ऑफ द रिलीजन, own and acquire movable and immovable property, ठीक है, administer such property in accordance with the law. The right under article 26 are also subjected to the public order, morality and health, but it is not subjected to the provisions relating to the fundamental rights, ठीक है. Next question is under which article of Indian Constitution wearing of kripans by the Sikh is deemed to be the right to freedom of religion, ठीक है. तो ये हमारा है आर्टिकल 25, wearing and carrying the kripans by the Sikh is deemed to be included in the profession of Sikh religion by virtue of the explanation 1 to the article 25 of the Indian Constitution, freedom of conscience and profession and practice and propagation of religion. Next is question 58, article 25 of the Constitution refers to, तो it refers to the freedom of religion, ठीक है, freedom of religion. Next question is which one of the following is not correctly matched, ठीक है. आर्टिकल 23 प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, ये सही है हमारा, ठीक है. आर्टिकल 24 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज. आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर एंड आर्टिकल 29 फ्रीडम टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय माइनॉरिटी, तो यही हमारा गलत हो जाएगा, 29 ही नहीं सही है. देखिए, फ्रीडम टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय द माइनॉरिटीज, ठीक है. तो ये जो हमारा आ जाएगा गिवन इन आर्टिकल 30. आर्टिकल 29 इज रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, बाकी जो हमारे सही हैं. आर्टिकल 29 क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज. एंड आर्टिकल 30 इज establish and administer educational institution by the minorities is given under article 30. Next question is which one of the following pair is not correctly matched, कौन सा सही नहीं है. प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है. प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज 29, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज 32 एंड राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. देखिए, हमारा डी नहीं सही होगा, बाकी तो हमारा ये जो है सही है. प्रोटेक्शन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर 23 है. प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज 29 है. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज 32 है. एंड राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इट इज इन आर्टिकल 31 दिया हुआ है, गलत हो जाएगा. देखिए, राइट टू माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 30 while the article 31 was for compulsory acquisition of property which has been repealed by 44th Amendment Act 1978 and now right to property is a legal right under the article 300A in the part 12th of the Constitution. तो ये क्या था आर्टिकल 30, आर्टिकल 31 था was the compulsory acquisition of property, ठीक है. ये रिपील कर दिया गया आर्टिकल 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 से, सॉरी इसको फिर से देख लीजिए. 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से जो है इसको क्या कर रिपील कर दिया गया. आर्टिकल 31 जो हमारा था कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, ये जो है रिपील कर दिया गया और अभी इसको लीगल राइट बना दिया गया है आर्टिकल 300A, ठीक है. लीगल राइट कहाँ बन गया, आर्टिकल 300A में पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट हैज बीन प्रोवाइडेड दैट ऑल माइनॉरिटीज शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर ओन चॉइस, ठीक है. तो ये है आर्टिकल 30. नेक्स्ट हमारा विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ द माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर ओन चॉइस, ठीक है. माइनॉरिटीज़ की राइट की बात करें तो जब जैसे माइनॉरिटीज़ देखेंगे तो हम आर्टिकल 30 लगा देंगे, उनके अकॉर्डिंग, उनके विल के अकॉर्डिंग वो जो है अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश कर सकते हैं. आर्टिकल 19 इज फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम. आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर. आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज. आर्टिकल 30 राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश and administer educational institution. Next question is given below are two statement, one is labeled as assertion and other is reasoning. Assertion, right, article 30 of the Constitution of India does not define the term minorities, ठीक है, डिफाइन नहीं करता माइनॉरिटी को. आर रीजन क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन रिकग्नाइज ओनली लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज, ठीक है. तो ये हमारा ये है.
ठीक है, ये बहुत सही है लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, सही तो दोनों ही है। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के अकॉर्डिंग हम माइनॉरिटी को रिकॉग्नाइज करते हैं। आर्टिकल 30 जो है हमारा, उसमें टर्म जो माइनॉरिटी टर्म है उसको डिफाइन नहीं किया गया। दोनों ही सही है लेकिन उस रीजन की वजह से वो सही नहीं है। देखिए, आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द राइट ऑफ द माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। माइनॉरिटीज whether based on the religious or linguistic shall have the right to establish their administrative education institution of their own choice. Article 31, ठीक है, Article 31, according to the Article 32, the state shall not in granting aid to the educational institution discriminate against any educational and institution on the ground that it is under the management of minority, whether based on the religion or the language. So it is clear that the minority is not defined in the article, hence the both statements are correct, लेकिन ये correct expression नहीं है। Consider the following statement। हमारा पहला है 301 301 है जो is related to the right to property। 300 है, 300A है ना। फिर हमारा है बी है, राइट टू प्रॉपर्टी इज लीगल राइट बट नॉट फंडामेंटल राइट। ये लीगल राइट है बट फंडामेंटल राइट नहीं है, ये सही है। आर्टिकल 300A वाज इंसर्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय 44th अमेंडमेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द कांग्रेस गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये कांग्रेस गवर्नमेंट, देखिए सिर्फ दो ही सही है, हमारा कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं थी उस टाइम। ठीक है, तो ये हमारा है सिर्फ जो है दो सही होगी, क्योंकि 300A है तो ये तो गलत ही हो गया। अब प्रॉपर्टी जो है लीगल राइट है, फंडामेंटल नहीं, ये सही है सिर्फ। तो देखिए यहाँ पे आर्टिकल 300 इज रिलेटेड टू द फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स and not with the right to property. Right to property was fundamental right under article 19(1)(f। ठीक है, कहाँ था? under article 19(1)(f), but by the 44th amendment act 1978 this clause 19(1)(f) has been omitted and article 300A has been inserted, which provides that no person shall be deprived of his property save by authority of law. This statement was done at the time of the जनता पार्टी गवर्नमेंट। तो ये कांग्रेस पार्टी नहीं थी, जनता पार्टी थी। तीसरा हमारा ऑप्शन भी गलत हो जाता है। After the amendment, right to property became the legal right, ठीक है, and ceases to be a fundamental right. Thus, only statement 2 is correct. Next question is, which one of the following can be enforced under the Article 32 of the Indian Constitution? ठीक है, ये constitutional rights, fundamental rights, statutory rights। तो ये fundamental rights है। Article 32 क्या है? Right to constitutional remedies। तो इसमें हम फंडामेंटल राइट्स को क्या कर सकते हैं, इन्फोर्स, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट 226 में हम और भी अदर राइट्स को कर सकते हैं एक्सेप्ट फंडामेंटल राइट्स। अभी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जो दायरा है वो सिर्फ फंडामेंटल राइट के लिए, तो ये हमारा सही हो जाएगा बी। देखिए, आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अगेंस्ट द वायलेशन और द transgression of the fundamental rights conferred by part 3. Supreme Court shall have the power to issue the direction or the orders or writs, including the rights like the habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto, and the certiorari, whichever may be appropriate for the enforcement of any of the rights conferred in part 3. That is why the Supreme Court has been called the guardian of the fundamental rights. ठीक है, the guardian of the fundamental right is कौन है? It is judiciary। ठीक है, it is judiciary। The Constitution of India has assigned judiciary, that is the Supreme Court of India and High Court, responsibility of the protection of the fundamental right. The most significant fundamental right is the exclusive right to constitutional remedies, Article 32 and 226 of the Constitution of India. Thus, the guardian of the fundamental right is judiciary। ठीक है, हमारा Supreme Court और High Court is the guardian of the fundamental right। ठीक है, अब आर्टिकल हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जस्ट अ सेकेंड। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सा सही नहीं है? के.एम. मुंशी वॉज वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट इज, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, पंचायती राज was recommended by the Balwant Rai Mehta report 1957 and the president, next option is D is President of India is the guardian of the fundamental rights under the Constitution। तो ये हमारा जो है नहीं सही है, यही नहीं सही, क्योंकि Supreme Court and High Court is the guardian। All the statements are correct except D, the judiciary, that is Supreme Court and High Court, is the guardian of the fundamental rights and not the President। Next is under the Indian Constitution, who is the guardian of the fundamental right? तो it is the Supreme Court, it is the Supreme Court। और judiciary High Court भी है।
तो अभी ऑप्शन में सुप्रीम कोर्ट है तो हमने वही लगा दिया. नेक्स्ट है अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज टू बी द गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. कौन कंसिडर किया जाता है? तो ये इट इज द जुडिशरी. ठीक है, जुडिशरी. Which one of the following is regarded as the protector of the fundamental rights of the citizen and guardian of the Constitution of India? So it is the Supreme Court. Supreme Court. देखिए Supreme Court of India is the protector of the fundamental rights of the citizen and the guardian of the Constitution of India because through right to constitutional remedies Article 32 it protects the fundamental rights of the citizens. ठीक है, 32 से जो है वो क्या करता है, जो आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग वो जो है जो फंडामेंटल राइट्स होता है सिटीजन का उसको जो है प्रोटेक्ट करता है. बिसाइड इट इंटरप्रेट एज वेल एज इनफोर्स द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो क्या करते हैं, इट सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट and enforce the provisions of the constitution. Which next question is 71st question. Which one of the following right was described by the Dr. B.R. Ambedkar as the heart and the soul of the constitution? So it is the right to constitutional remedy, article 32. Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar described Article 32 as the heart and soul of the Indian Constitution. In his work, if I was asked to name any particular article in the Constitution as the most important and article without which Constitution would be nullity, ठीक है, मतलब वो जो है Constitution की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी. I could not refer to any other article except this one, that is article 32. It is the very soul of the constitution and heart of it, and it is also notable that on various occasions preamble of to the constitution is also recognized as the soul of the constitution. हमने already cover किया हुआ है, but according to Dr. B.R. Ambedkar 32 is the heart and soul of the constitution. Next question is which one of the following articles was termed as the heart and soul of the constitution by Dr. Ambedkar? So it is article 32. Next question is consider the following statement, assertion and reason. Assertion is Dr. Ambedkar has described article 32 as the of the constitution as very soul of it, right? Next is reason is article 32 provides an effective remedy against the violation of fundamental rights. So that is right. A and B both are correct, and I think it is the correct explanation of. So answer will be A. Dr. B.R. Ambedkar has described Article 32 as the very soul and the heart of the Constitution, as Article 32 provides an effective remedy against the violation of fundamental right enshrined in the Indian Constitution. The Supreme Court has the power to issue direction or order or writ for the enforcement of any of the fundamental rights. ठीक है, that's A and R both are true, and R is the correct explanation of A. Which one of the following writs can be issued by a High Court to secure लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल, किसी इंडिविजुअल की लिबर्टी को सिक्योर करने के लिए? तो कौन सा है हमारा? ये हमारा हैबियस कॉर्पस, टू हैव द बॉडी ऑफ, मतलब उस इंडिविजुअल की बॉडी हमारे सामने रखिए, तो ये हमारा सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, हाई कोर्ट कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट दोनों कर सकता है. यहाँ पे 226 के अंडर बात की जा रही है, तो हाई कोर्ट. ठीक है, आर्टिकल 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द पावर ऑफ द हाई कोर्ट टू इशू द सर्टेन रिट्स टू सिक्योर लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल. हाई कोर्ट कैन इशू द रिट्स ऑफ हैबियस कॉर्पस. द रिट इज इशूड बाय द कोर्ट whose object is to secure the release of a person. ठीक है, secure the release of a person found to be detained illegally and to secure the liberty of the individual. ये है. The Supreme Court also has the power to issue the writs under Article 32 of Indian Constitution for the rights enumerated in the Part 3 of the Constitution, that is fundamental rights, whereas the High Court can issue writs related to the legal rights also. Next question is which one of the following constitutional remedies is known as the postmortem? कौन सी, किसको हम postmortem कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा. इट इज क्यू वरेंटो. ठीक है, क्यू वरेंटो क्या है? postmortem कहते हैं इसको. देखिए क्यों quo warranto also known as the postmortem, तो क्योंकि quo warranto is issued against a person whose claim a public office. ठीक है, मतलब क्या होता है कि वो क्लेम करते हैं किसी पब्लिक ऑफिस को. थ्रू दिस रिट द कोर्ट इंक्वायर्स बाय व्हाट अथॉरिटी. quo warranto मतलब होता है किस अथॉरिटी से, क्यों किया आपने. ठीक है ना, बाय व्हाट अथॉरिटी. तो जो है इशूड अगेंस्ट अ पर्सन whose claim observe a public office through this writ the court inquires by what authority. ठीक है, the person support his or her claim. ठीक है, अब मतलब किस अथॉरिटी से
और थ्रू दिस रिट द कोर्ट इंक्वायर्स इनटू द लीगलिटी ऑफ द क्लेम ऑफ अ पर्सन टू अ पब्लिक ऑफिस, ठीक है, उस जो है उसका क्लेम सही है कि नहीं उस पब्लिक ऑफिस के लिए. द रिट प्रिवेंट्स द इलीगल अजम्पशन ऑफ अ पब्लिक ऑफिस बाय एन इंडिविजुअल. तो ये है पोस्टमार्टम कोवरेंट होकर कहते हैं, याद रख लीजिएगा. नेक्स्ट हमारा है द रिट विच मे बी फिल्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट ऑफ पर्सनल फ्रीडम, ठीक है, पर्सनल फ्रीडम को. तो आपको पता है हैबियस कॉर्पस है, ठीक है, किसी को जो है इलीगली डिटेन कर दे तो कोर्ट जो है उसमें उनकी लिबर्टी को जो है सेट करती है, ठीक है. द वर्ड habeas corpus literally means to bring the body before the law, before the court. By this writ the court secures the body of a person who has been imprisoned or detained to be brought before the court to obtain the knowledge of reason or the ground for such detention and to do justice. This writ secures the right of the personal liberty. Next question is match list 1, list 1 articles of the constitution and list 2 provisions. Select the correct answer using the code given below. List 1 is article 16(2), list and article 31A, and list 2 is article 29(2) and 31(1). ओके, वो सारा एक ही लिस्ट था. लिस्ट 2 में प्रोविजंस है तो हम इसको डायरेक्टली देखेंगे, ठीक है ना. देखिए आर्टिकल 16(2), नो पर्सन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द मैटर ऑफ द पब्लिक अपॉइंटमेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, रिलीजन एंड और कास्ट, ठीक है. तो पब्लिक अपॉइंटमेंट में जो है रेस और रिलीजन और कास्ट के बेस पे उसको जो है डिस्क्रिमिनेट किसी भी इंडिविजुअल को नहीं कह सकता. 29(2) is no person shall be detained admission into any educational institution maintained by the state or the receiving state aid on the ground of the religion, race, caste or language or any of them. Next question is 31 30 का 1, ठीक है. क्या है 30 clause 1? ये है हमारा all the minorities whether based on the religion or the language shall have right to establish and administer educational institution of their own choice. 31 का क्लॉज 1 में है कि पर्सन नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव्ड बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ. नेक्स्ट है लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2. हमें करेक्ट बताना है. लिस्ट 1 में फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स, डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर एंड प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग. और मुझे आर्टिकल बताना होगा. देखिए आप लोग आर्टिकल देखिएगा यहाँ पे. देखिए यहाँ पे डायरेक्ट देखते हैं. देखिए मैच्ड ऑर्डर ऑफ द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 कैसा है हमारा. फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटी किसमें है 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से जोड़ा गया. पार्लियामेंट कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट, केस मनन भारती केस है. डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ये जो हमारा है थियरी ये मिला है मिनर्वा मिल केस से, ठीक है, मिनर्वा मिल केस से. और पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट, ये केस मनन भारती है. फंडामेंटल राइट जो है अमेंडेबल है, ठीक है. पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट, ये केस मनन भारती केस है. प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग, आर्टिकल 23 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है. तो ये हो गया हमारा. अभी फिर से हमें मैच कराना है लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2. लिस्ट 1 में एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज ऑफ माइनॉरिटीज एंड राइट टू एजुकेशन, ठीक है. तो इसको हम देख लेते हैं. देखिए एबॉलिशन ऑफ टाइटल हमारा आर्टिकल किस में है 18 में है, ठीक है. फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स 26 में है. फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर 26. फिर उसके बाद हमारा है प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज ऑफ माइनॉरिटीज 29 में है. आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन, ठीक है, 21A में राइट टू एजुकेशन. नेक्स्ट इज द स्कोप ऑफ the article 21 of the constitution was expanded to include right to education because of the decision of the supreme court in this case. तो कौन से केस में है जो right to education जोड़ दिया गया है? ये है उन्नी कृष्णन वर्सेस द आंध्र प्रदेश, ठीक है. उन्नी कृष्णन वर्सेस आंध्र प्रदेश, ठीक है. उन्नी कृष्णन वर्सेस आंध्र प्रदेश केस, constitutional challenges querying whether the right to life in the article 21 of the constitution of India guarantees the right fundamental right to education to the citizen of India. Role of economic resources is limiting right to education. Interplay between the directive principle and state policy in the constitution and the fundamental rights. Whether the right to education includes adult professional education, ठीक है. तो ये हमारा है. नेक्स्ट है 81. by which of the following cases पार्लियामेंट गॉट द राइट टू अमेंड फंडामेंटल राइट, ठीक है. तो कौन से केस में मिला? ये हमारा है केस मनन भारती, ठीक है. द फर्स्ट टाइम द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द फंडामेंटल राइट्स आर अमेंडेबल इन द केस ऑफ द
शंकरी प्रसाद वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया 1951, ठीक है ना, पहला केस ऐसा था वेयर द फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द फंडामेंटल राइट्स आर अमेंडेबल वाज इन द केस ऑफ द शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951, सज्जन सिंह वर्सेस राजस्थान 1965, फिर है गोलकनाथ केस 1967, द प्रियर डिसीजंस वर रिजर्व, it was held that the amendment of the fundamental right is not possible, ठीक है ना, amendment of fundamental right is not possible. Again in case one and Bharti case 1973, the Supreme Court held that the amendment power of the parliament is wide, even though not unlimited. It may amend the fundamental right, but in such way so that as to destroy the basic structure of the constitution. This case outlined the power of the parliament to amend the आपका fundamental right without destroying the basic structure of the constitution, ठीक है. Next question is select the correct chronological order of the following judgment dealing with the fundamental rights, ठीक है. chronological order हमें बताना है. गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, एंड मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, ठीक है. तो देखिए हमारा क्या होगा, ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास. ए.के. गोपालन ये हमारा 1950 में है. गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब ये 1967 में है, ठीक है. केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला ये जो है 1973 में है, और आपका मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया has propounded that the doctrine of basic structure of Indian Constitution with the following cases. तो ये हमारा केस है केशवानंद भारती वर्सेस जो है स्टेट ऑफ केरला. देखिए डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओज इट्स इवोल्यूशन इन द रेशियो ऑफ द मेजॉरिटी जजमेंट इन द सुप्रीम कोर्ट इन द landmark case Keswanand Bharti versus State of Kerala, that is 1973, which was approved by the Minerva Mill versus Union of India 1980. Next is which one of the following cases outline the basic structure or basic structure doctrine in the Indian Constitution. तो ये जो हमारा केशवानंद भारती केस versus State of Kerala, ठीक है. Next is right to property is a legal right. It is a legal right, ठीक है. देखिए as the constitution was originally drafted, the right to property was enshrined as a fundamental right, but by the 44th Amendment Act 1978 of the Constitution, right to property was removed as a fundamental right, ठीक है. कौन से में 44th Amendment Act 1978 से रिमूव कर दिया गया था. 44th Amendment Act 1978 से it was removed as a right to property was removed as a fundamental right, and a new provision was added to the Constitution, that is Article 300A. Now it is a legal right, ठीक है. अभी ये legal right है. तो 86 क्वेश्चन से हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. थैंक यू.